Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 9th. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I just request you to stay home and stay safe. Use always be face mask covers. Wash your hand at a specific time of interval. Always be take sanitizers with you. Once again, stay home and stay safe. On the previous class of your science, we're discussing about the chapter number 3, that is atoms and molecules. On the behalf of today, we're discussing about the new chapter, that is chapter number 15, your NCERT textbook syllabus, that is improvement in food resources. Now, before we're discussing about the food resources, generally we take some of the introductions like keep all of the living organisms which generally living onto this ecosystem have to be used the specific substances to survive their life. Like food is one of the important medium, water is there, air is there. So all these living organisms to perform the specific activities which requires the food. And food generally has to provide the different type of nutrient substances like the proteins is there, carbohydrates there, fat, vitamins, minerals, water, all the these things which body required to perform the specific activities for their growth and development. As well as like plants also use the specific substances, minerals, waters, ions to perform their growth and development and their implementations. They also use the foods. So we obtain the most of the food from the agricultures and the animal husbandry, because we cannot be obtain our food directly like a plants. Plants is autotrophic nutrition. They can be generally obtain their food by using the chlorophyll, but we can't. So we have to mostly dependent on the forms of agriculture or animal husbandry. Generally, while we reading on to the newspapers and the different things, we generally improve the production of agricultures and the animal husbandry. So why is it should be necessary? Why the agriculture development is necessary to be improved? Why animal husbandry is to be improved? Why we cannot be used same kind of productions what we have to be done into the previous years? So behalf of that, if we consider that our country, India is a very populous country, large number of population, 1.3 billion people are there right now. So and this still going on, because if you see that the implementations or maybe the growth of the peoples, that should be production of these peoples and population that should be more increases. So as increasing of this type of the populations, the food growth population and the food requirement is also have to be increases. So this is generally have to be implementation by the implementation and changes into the agriculture, because we have the specific type of land, very scarcity of land, and using of that land we have to be implement more and more forms of the agricultures for in terms of to increase and the requirement of this livestock. So efforts to meet out this type of the food demand of increasing of the food productions have to be lead right now the success of so far, but we have to be working on to the specific terms of the green revolution to increase the such a food grain productions. So however, to meet this type of the requirement and resources, the nature resources getting some of the more changes, like the causing of changes into the nature resources, the climate balance, this all these things to be required. So if we have to be implemented this type of things which we have to be implemented more and more. So there is need to be a sustainable practice on agriculture and animal husbandry, like a scientific methods that we have to be approach and we have to add it to increase the specific terms of the agriculture and animal husbandry. Also we have to be increased like grain productions as well as storage into the warehouses cannot be solve the problems of the malnutrition and hunger. If we increase the more and more productions of the crops and we have to store into the warehouses, so it cannot be reduce the hungers and the malnutrition process and problems which can be faces out in the peoples. So people should have a specific money to purchase their food, and food security that depends on the both availability of the food and access to the all the peoples that can be easily accessed. So it should be necessary to combat a problems to the hungers. So scientific management of the practice should be undertaken to obtain the high amount of yields to the farmers. So that should be a livelihood. So one should to be undertake that mixed farming practice you have to be taking. So in this chapter
we have to be taking like the what is called mixed farming, intercropping or integrated farming practice, like agriculture of livestock, of poultry farming, fish farming, beekeeping. These are the topics that we have to be discussing in the digest form. So if we consider कि India is achieved a green revolutions into the wheat production in the years 1970. In the year of 1970, our country has to be achieved a green revolutions of wheat production in form. So in that formation of scientific approaches that should be taken into the green revolution, scientific approaches that can be taken, like crop variety improvement is there, crop production management and protections or improvement is there, how we can be crop protect. These are the terms that we have to be discussing in these forms. So improvement, before, if we want to be implement or crop variety improvement, what are the generally forms of the crop variety improvement, or mean how we can be adopt the scientific approaches towards the crop production, किस तरह के scientific approach हमें use करने चाहिए crop production के form में. So in terms of quality as well as quantity of a crop productions, it necessary to select such a variety of crops which generally gives a higher yield. हमें इस तरह के क्रॉप्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस इंप्लीमेंट करे, विच ऑल्सो बी अ रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज, ज़्यादातर डिसीज उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन ना हो. इन दिस रिगार्ड्स द आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वैल्यूएबल फीचर्स, अलग अलग फीचर्स जो हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, द क्रॉप्स एंड द इंटरक्रॉपिंग देम इनटू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट. जैसे हमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट हमें चाहिए तो हम उसके ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स या नए नए फ्यूचर प्लांट्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं. तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, विच आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेकन केयर टू बी इम्प्लीमेंटेशन टू बी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्ट्स. तो एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज फ्रॉम द अदर रीजन्स, अलग अलग जगह पे नए नए तरह के स्पीसीज को जनरेट करना, सिलेक्शंस ऑफ द मोर यूजफुल वेराइटी, जो ज़्यादा यूजफुल वेराइटी उसको सिलेक्ट करना, हाइब्रिडेशंस ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग अमंग द वेरियस स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडेशंस करना, ऑब्टेनिंग अ न्यू प्लांट वेराइटी, नए नए प्लांट वेराइटी को ऑब्टेन करना. दिस आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू बी टेकन केयर टू बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अ लार्ज क्रॉप वेराइटी इम्प्लीमेंटेशन. तो अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके के हमें फूड जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे सैरल्स के अंदर, जैसे वीट से राइस, मेज, मिल्स, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए. पल्सेस के अंदर जैसे ग्राम है, चना है, पी है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ये सारे सब्सटेंसेस हमें ज़्यादातर प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे सब्सटेंसेस अलग अलग तरीके के फूड रिक्वायरमेंट हमें देते हैं. तो हमारे कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग सीजन्स के अंदर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते हैं. जैसे खरीफ सीजन्स आप मंथ जून से अक्टूबर के अंदर देख लीजिए, विंटर सीजन्स के अंदर आप देख लीजिए, रैबी सीजन्स नवंबर से अप्रैल का जाता है, उसमें अलग अलग सीजन्स होते हैं. तो इंडिया के अंदर आप देखें तो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के हम क्रॉप्स को इम्प्लीमेंटेशन हम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसमें अलग अलग फॉर्मेशन आते हैं जिसमें हमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, इन तीनों पे ध्यान रखना होता है. तो हम पहला डिस्कशन करते हैं कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या है. तो जैसे मैंने आपको समझा कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के अंदर हमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस का जो प्रोडक्शन है वो हमें जनरली इंप्लीमेंट करना होता है. तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें एक पहला होता है हायर यील्ड. हायर यील्ड मतलब कि द मेन एम ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट इज टू बी इंक्रीज द यील्ड, लाइक प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, वो हमें इंक्रीज करना है. सो यूजिंग ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, improved variety of commercial basis that can be help this type of the production of the yield. दूसरा हमें ध्यान रखना improve quality, quality improve होने चाहिए. The generally requirement and the definitions of quality that varies from crop to crop. अलग अलग क्रॉप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अलग अलग क्रॉप की अलग अलग वेराइटी होती है, उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है. लाइक पल्सेस के अंदर देखें तो पल्सेस के अंदर लाइक क्वालिटी रिक्वायरमेंट इज मेन एबिलिटी टू प्रोवाइड द प्रोटीन्स, हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. अगर हम पल्सेस की अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि मोस्ट ऑफली वी प्रोवाइड द मोस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें. तो सीड्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी of formations of the fruits and vegetables should be such that they can be used the longer times, वो ज़्यादातर यूज हो सके. The crops that can be fulfill its respectively desired characteristics that should be produced. उसका होना चाहिए बायोटिक रेजिस्टेंस,
कि जो कॉपर जो क्रॉप्स होते हैं that suffers from various biotic problems such as like insects is there, nematodes is there, worms is there, उसके effects crops में देखने को मिलते हैं. Also crops that can be suffers from various abiotic problems like drought, sanitary problems, soil problems, water scarcities, heat, cold, moisture. These are the effects that can be suffered from the crops. So crop varieties should be such that can be fight against this type of the problems. इस तरह का क्रॉप्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए जो इस तरह के डिजीज जो है या जो प्रॉब्लम्स है उससे वो फाइट कर सके. चेंजेस इनटू द मैच्योरिटी ड्यूरेशन. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंजेस करना. तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स दैट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग एज वेल एज टू मोर बेनिफिशियल विल बी अ वैरायटी. अलग अलग वैरायटीज के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. इफ द मैच्योरिटी ड्यूरेशंस ऑफ द क्रॉप्स इज मेड वेरी शॉर्टर, तो दैट शुड बी लॉस ऑफ अकरिंग्स ऑफ ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग दैट कैन बी रिड्यूस इन स्पेसिफिक टर्म्स. तो वो इफेक्ट होता है. वाइडर एडेप्टेबिलिटी, हर जगह पे उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए. जो जरूरी एग्रोनॉमिक कंडीशन है उसमें वो फुलफिल होना चाहिए. तो these are the conditions that we have to taken care or may be implemented from the various type of the crop variety improvement. हमें उसमें ध्यान रखना होता है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो दिया है, इम्प्रूवमेंट, फॉर्मेशंस, चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर डिसेबिलिटी, एग्रोनिक फॉर्मेशंस, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का. चलिए उसके बाद हम उसके इम्प्रूवमेंट पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जिस्ट ऑफ क्रॉप्स. वहाँ पे अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अवेलेबल होते हैं. बट ओनली दोज वैरायटीज विच आर यूजफुल दे आर सिलेक्टेड फॉर द कल्टिवेटेशन ऑफ अ लार्ज स्केल. हमें इस तरह के क्रॉप्स हम सिलेक्ट करते हैं जो लार्ज स्केल पे कल्टिवेटेड हो सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं. फीचर्स सच एज लाइक वी डिस्कसिंग हायर यील्ड्स आर देयर, रिप्रोडक्शन रेट इज हाई, resistance of disease, drought and temperature, nutrition values, productions. These are generally considered as the selections of the good crops. इसका हम उसमें formations में use कर सकते हैं. These are the crops which can be used as a terms of the selections of the good amount of crops which can be implemented into the formations. तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें ध्यान रखनी होती हैं. जैसे यहाँ पे दिया है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, वो सारे टॉपिक्स उसमें दिए हैं कि इन इंडिया as in many other agriculture based country, farming range from small to very large farms. छोटे छोटे फार्म से लेकर बड़े बड़े लार्ज स्केल तक हो सकते हैं. तो अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस उस पर हो सकते हैं. तो अगर हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का, अगर हमें प्लांट्स का कल्टिवेशंस करना है तो उसके लिए हमें हाइब्रिडेशन टॉप मेथड्स जो है वो यूज करना होता है. वी मोस्ट ऑफली फोकस ऑन टू द हाइब्रिडेशंस. तो प्लांट का हाइब्रिडेशंस क्या होता है? जैसे एनिमल्स के अंदर हाइब्रिड होते हैं, वैसे प्लांट के अंदर भी हाइब्रिड होते हैं. So the scientific method to obtain a desired characteristics in a new plant by cross breeding of the two or more species of the plant is known as a hybridization. दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स के बीच में एक डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करने के लिए आप साइंटिफिक मेथड से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडेशन. द न्यू प्लांट दैट शुड बी प्रोड्यूस उसको आप हाइब्रिड प्लांट कह सकते हैं. दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ हाइब्रिड प्लांट. सो इट मीन्स द हाइब्रिडेशन इज डन टू इम्प्रूव द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट. वो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जो जेनेटिक्स फॉर्मूलाज होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर वो चेंजेस करता है. तो अलग अलग तरीके के हाइब्रिडेशन होते हैं, जिसमें तीन तरह के हाइब्रिडेशन है. एक होता है इंटरवेरिएटल हाइब्रिडेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन और एक होता है इंटरजेनरिक हाइब्रिडेशन. तीन मेथड्स हैं, इंटरवेरिएटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक. तो इंटरवेरिएटल हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो देखो इस तरह के जो हाइब्रिडेशन टाइप होते हैं कि हाइब्रिडेशन इज डन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ अ गिवन स्पीसीज. एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग वेराइटी के बीच में अगर आप हाइब्रिडेशन करते हैं तो उसको आप इंटरवेरिएटल हाइब्रिडेशन कहते हैं. सो मोस्ट ऑफली द हाइब्रिड वेराइटीज लाइक सेरल्स हैव बीन इवॉल्व्ड इन दिस मैथड. जो इंटरवेरिएटल सेरल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है. उसके अलावा जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है दैट शुड बी डेवलप्ड हायर यील्ड, रेजिस्टेंट डिजीज, बेटर क्वालिटीज, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद आता है इंटर स्पेसिफिक. तो हाइब्रिडेशन इज परफॉर्म बिटवीन द टू स्पेसिफिक ऑफ सेम जीन्स. एक ही जीन्स के दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर आप हाइब्रिडेशन करते हैं तो उसको आप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहते हैं. इस तरह के हाइब्रिडेशंस के अंदर मैनी डिजीज जैसे पैट्स, ड्राफ्ट रेजिस्टेंस, वीट्स है, टोमेटो है, शुगर कैन है, ये सारे जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं.
उसके बाद आता है इंटरजेनरिक। तो इस मेथड के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स जो दो अलग अलग जेनेटिक्स के साथ बिलोंग्स करते हैं, उन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होता है, उसको इंटरजेनरिक कहा जाता है। जैसे सैरल्स के अंदर आप राइस, व्हीट, मीज है, पल्सेस के अंदर पी और मूंग है, इस अलग अलग वेराइटीज को आप इसमें हाइब्रिडाइज करके वो नए अमाउंट्स ऑफ क्रॉप्स को जनरेटेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर जैसे हम देखते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्ज एरिया अंडर द कल्टिवेशंस, हमारे यहाँ पे काफ़ी लार्ज एरिया है कल्टिवेशंस के लिए। मोस्ट ऑफली 3/4 पीपल्स जो है मोस्टली एंगेज हैं कल्टिवेशन क्रॉप्स के अंदर। सो उसके अंदर आप स्मॉल फार्म से लेकर लार्ज फार्म्स तक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफली वी आर डिपेंडेंट ऑन टू द स्मॉल फार्म्स टू द लार्ज एरियाज ऑफ सेक्टर फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो उसमें इंडियन फार्मर्स को क्लासिफाइड किया गया। टिपिकली इंडियन फार्मर्स दैट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स, जिसमें अलग अलग पॉइंट से हम उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें 3 तरीके के फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स। 3 फार्मर्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्मॉल, प्रोग्रेसिव और मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को क्लासिफाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे फार्मर्स के पास कितना लैंड है, हाउ मच लैंड होल्डिंग बाय द फार्मर्स, व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशंस, वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर का यूज करता है कि नहीं करता है। दीज आर द मेथड्स दैट वी हैव टू बी यूज टू बी परफॉर्म अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्मर्स। तो ये उसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स दैट रिक्वायर द फूड फ्रॉम द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड द वेल बींग्स, ऑल्सो प्लांट रिक्वायर द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर ग्रोथ, or nutrition that should be provided by the plant by the 3 specific methods like air, water and soil. So the food requirement by the plant is provided by the certain mineral elements, and these mineral elements are called plant nutrition. उसको आप plant nutrition कहते हैं। Plants that absorbs a very large number of element from the soil, soil के अंदर से large number of element को absorb करता है, but from them only 16 elements are essential for the plants। केवल ऐसे 16 elements हैं जो essential है plants के growth के लिए और development के लिए। So this in this absence of this element, if the element doesn't get by the plant, so plant must not been able to complete its life cycle। प्लांट जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करता है, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, जो उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, दैट शुड बी कुड बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ द न्यूट्रिशन। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ही उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। द एलिमेंट शुड हैव टू बी influence from the plant nutrition and metabolisms. तो plant that get the nutrition from the different type of sources like air के अंदर क्या मिलता है उसको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। वाटर के अंदर से इट गेट हाइड्रोजन, और सॉइल के अंदर से अगर आप देखिए तो इससे बोरॉन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है, पोटेशियम है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो है उसको सॉइल के अंदर से मिलते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट्स जो है इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको लार्ज स्केल पे यूज करता है, कुछ ऐसे हैं जिसको लोअर स्केल पे यूज करता है, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन का टर्म जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो उसमें देखिए कि जो ऐसे 6 न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इसका वो सबसे ज़्यादा यूज करता है, इसीलिए उसको आप मैक्रो न्यूट्रिशन लार्ज स्केल पे उसका यूज करता है। उसके अलावा आप देखिए जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे दिया है कि जैसे आप बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये सारे सब्सटेंसेस माइनर फॉर्म में यूज करता है, तो उसको आप माइक्रो न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशंस अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं मिलता है तो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। दैट शुड बी रिड्यूस वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी होती है, उसके लिए हमें अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोवाइड करना होता है। तो अगर प्लांट के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, प्लांट्स अगर न्यूट्रिशंस प्रॉपरली उसको नहीं मिल रहा है, तो हमें उसको आर्टिफिशियल मेथड से वो सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें 2 सब्सटेंसेस हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक मैन्यूअर आता है और एक फर्टिलाइजर्स आता है। पहले हम समझते हैं मैन्यूअर के बारे में। तो मैन्यूअर जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है दैट शुड बी एडेड इनटू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के प्रोडक्शंस के लिए ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है इसको आप ऐड करते हो सॉइल के अंदर, जिसको आप मैन्यूअर कहते हो। और मैन्यूअर दैट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सबसे ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो
और मैन्योर सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशन टू द सॉइल। मैन्योर के अंदर से कम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है बट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। तो मैन्योर को अगर आप ऐड करते हो सॉइल के अंदर ना, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स जो है सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें मैन्योर्स दैट एनरिच द सॉइल विद द न्यूट्रिशन एंड मेक इट फर्टाइल, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ सॉइल को फर्टाइल करता है। सिंस द मैन्योर दैट contains a very less quantity of nutrition, so a large quantity of manure that need to be supplied to the soil, कम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन उसको मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर को ऐड कर सकते हैं। मैन्योर दैट कैन बी एड ऑर्गेनिक मटेरियल टू सॉइल विच इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ड्रेनेज ऑफ क्ले बेस्ड सॉइल, इंप्रूव्स टेक्सटाइल ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन जो है उसको सॉफ्ट करता है, ये मैन्योर का एक काम है। ऑर्गेनिक मैन्योर जो ऑल्सो प्रोवाइड्स द फूड लाइक बैक्टीरियाज विच इज लिविंग इन टू द सॉइल विच हेल्प मेकिंग टू द न्यूट्रिशन अवेलेबल टू द प्लांट्स एज अ पार्ट ऑफ द फर्टाइल, ये सारे चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर मैन्योर्स को अगर आप कंसिडर करें तो अलग अलग तरीके के मैन्योर्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऐसे तो 3 तरीके से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, फार्मराइड मैन्योर, कंपोजिट मैन्योर और ग्रीन मैन्योर, ऐसे 3 तरीके के हम क्लासिफिकेशन मैन्योर के देख सकते हैं। तो जो फार्मराइड मैन्योर होता है, द मैन्योर दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द कैटल डंग एंड द यूरिन अलोंग विद द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द फॉडर्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज अ फार्मराइड मैन्योर, उसको फार्मराइड मैन्योर कहोगे। दूसरा कॉम्पोजिट आता है जिसको वर्मी कॉम्पोस्ट भी कह सकते हैं। तो इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट सच एज लाइक अ डेड प्लांट, rotten vegetables, animals' dungs, urine, sewage waste, crop. These all are collected from the farms and villages, and by the decomposition, we can create this type of the farm as a part of manures, that is called composite manure. Third is the green manure. So green manure is prepared by the first growing a crop and then mixing the same green crops with the soil by plugging the soil. So for this purpose, crops that can be grow very quickly and the lignous and the non-lignous are also be grown, so it should be equally a good quality of the farmराइड manure. So that is a part of the green manure. ठीक है, ये 3 substances वहाँ पे manure के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है fertilizers है। Fertilizers are the chemical substances that put out into the soil to provide the nutrition. सॉइल के अंदर आप उसको ऐड करते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेज है, जो उसकी प्लांट सॉइल की न्यूट्रिशन है या सॉइल का जो फर्टिलिटी फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर पुट आउट इनटू द सॉइल फॉर द प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली इनटू द इंडस्ट्रीज फॉर देयर कॉमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसका यूज करते हैं। Fertilizers that can be carry a very large amount of nutrition, so only a small quantity that should be put out into the soil, as well as fertilizers that supply nitrogen, phosphorus, potassium, lead to the soil. So based on this type of the nutrition provided by these fertilizers that can be classified into the different types, अलग अलग types में आप उसको classified कर सकते हो fertilizers को। सो फर्टिलाइजर्स जो है उसमें आप देखिए तो जैसे हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स है, फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स है, या उसके लिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होता है उसके अंदर मेन सब्सटेंस नाइट्रोजन होता है, जैसे लाइक यूरिया है या एमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे सारे जो एग्जाम्पल्स है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन को। उसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का मेन कंटेंट जो होता है फॉस्फोरस होता है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को कंटेन करता है। उसके अलावा पोटासिक फर्टिलाइजर्स है, पोटासिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पोटेशियम को कंटेन करता है, जिसमें पोटाश है, सल्फाट, पोटास है, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस का यूज़ करता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे यूरिया और एमोनियम नाइट्रेट का आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है। तो दिस आर द जनरली पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है वो इरिगेशन के बारे में, दैट वी डिस्कसिंग अबाउट टुडे द इरिगेशन। देखिए, द प्रोसेस of supplying the water to the crops plant through the human effort is known as irrigation. जो क्रॉप्स और प्लांट्स को जो वाटर प्रोवाइडेड होता है थ्रू द ह्यूमन एफर्ट्स उसको आप इरिगेशन कह सकते हैं। सो रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द प्लांट। प्लांट के अंदर रेन जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में काम करता है जो वाटर प्रोवाइड करता है, बट द सेवरल अदर वेज
that to be state that this the water is used into the agriculture are needed into the order to increase the food production, प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए हम इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं. सो कीपिंग इन द माइंड की द स्कैरिटी ऑफ वाटर एज वेल एज इनटू द वेरिड क्लाइमेट इन अवर कंट्री, सेवरल इरिगेशन सिस्टम्स इंक्रीज और मे बी यूज टू बी सप्लाई द एडिक्वेट फॉर्म ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर लैंड. तो ये इरिगेशन सिस्टम होता है. उसमें जैसे कैनल इरिगेशन है, वेल इरिगेशन है, रिवर लिफ्ट इरिगेशन है, टैंक्स है, ऐसे अलग अलग तरीके के हम इसका यूज करते हैं. सो मोस्टली कॉमन एरियाज के अंदर हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम ये जो चार जो फॉर्मेशंस दिए हैं एग्रीकल्चर के फॉर्मेशंस के अंदर उसका हम यूज करते हैं. पहले हम डिस्कशन करते हैं कैनल इरिगेशन के बारे में. कैनल इरिगेशन क्या है? कैनल सिस्टम is one of the biggest and most expensive irrigation system of our country. In this system, the main canal which receives the water from the dams, the main canal, this distributes the water into the several canals, and each branch of canal supplies the water to the distributed its different type of channels. So finally, water is distributed into the fields through along these canals. वो लैंड के अंदर वाटर आ जाता है. द कैनल सिस्टम इज टू बी कंट्रोल बाय अ कॉल्ड अ रोटेशन सिस्टम. रोटेशन सिस्टम से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं. आज इस वीक में इधर इधर अलग अलग तरीके से आप वाटर को भेज सकते हैं. थ्रू द रोटेशन सिस्टम द फ्लो ऑफ वाटर दैट कैन बी इजिली कंट्रोल एंड डाइवर्टेड टू द रीजन्स विच रिक्वायर द मोर वाटर. जहाँ ज़्यादा पानी चाहिए वहाँ पे वो उसको प्रोवाइडेड करते हैं. दैट इज कॉल्ड कैनल इरिगेशन. उसके बाद वेल इरिगेशन. वेल इरिगेशन इज जनरली डन थ्रू द वाटर इज नॉन एज अ वेल इरिगेशन. वाटर के थ्रू जो इरिगेशन होता है उसको वेल इरिगेशन कहते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ द वेल्स. एक होता है डग वेल, एक होता है ट्यूबवेल. ट्यूबवेल को हम बोरवेल भी कह सकते हैं. डग वेल क्या होता है? द बॉटम ऑफ द डग वेल इज बिलो टू द ग्राउंड वाटर लेवल and the water from the surrounding soil slowly gets accumulated into the pit of the well. That is called dug well. Tube क्या होता है? Tube well or bore well that can be gather water from the deeper layer of the soil. From the constructing of this tube well, the pores of the pipes that should be dipped into the soil until it reach into the specific stratums of content of the water, and by using the diesel or electrical pumps we get the water from the outer side. That is called as a well. उसके बाद आता है रिवर लिफ्ट. रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है कि वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन और मे बी लिफ्ट डायरेक्टली आप लिफ्ट कर सकते हो from the river with the help of diesel or mechanical pumps that should be supplied into the fields. This system is more useful areas where the flow of canal water is insufficient or irregular due to the inadequate water. ऐसी जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की स्कैरिटी है, इरेगुलरिटी है, एडिक्वेट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं. तो these are the उसके अलावा एक टैंक्स के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि टैंक्स क्या है. देखिए टैंक के अंदर टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स विच जनरली कैच द फॉर्मेशंस ऑफ द स्टोर एंड रन ऑफ द स्मॉलर एरियाज, जिसमें फाउंटेन और स्प्रिंकल, जिसको ड्रिप इरिगेशन भी कह सकते हैं. तो फाउंटेन इरिगेशन क्या होता है कि वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप्स इन फ्रॉम ऑफ द शावर जस्ट लाइक अ रेन फॉर्म. रेन शावर होता है वैसे जाता है. हाई प्रेशर ऑफ फाउंटेन विच शुड बी अटैच विद द पाइप के साथ जो वाटर को स्केयर करता है. ड्रिप इरिगेशन में होता है कि ट्यूब्स के साथ अटैच होता है और ड्रिप बाय ड्रिप पानी जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है. 40 से 50% ऑफ वाटर जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर जनरली कॉल्ड एज अ इरिगेशन मेथड. अब हम डिस्कशन करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में. क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है और कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर. तो वेरियस टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग मेथड्स that can be developed from the raising of crops such a way that the maximum benefit that can be obtained from the same piece of the land having a very less risk of crop failure can be reduced is known as a cropping patterns. So तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के, जिसको मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन कहते हैं. ठीक है, तीन अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. दीज आर द थ्री टर्म्स विच शुड बी यूजेस. पहले हम डिस्कशन करते हैं क्रॉपिंग फॉर्मेशंस के अंदर मिक्स क्रॉपिंग के बारे में. मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि जो सीड्स जो होते हैं दे हैविंग अ डिफरेंट क्रॉप्स आर मिक्स टुगेदर एंड देन सोन आइदर लाइंस और डिसअपीयर्ड इन द फील्ड. अलग अलग फॉर्मेशंस के होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हैं. लाइक वीट्स एंड ग्राम्स, मेज और उड़द बीन है, कॉटन मूंग है, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, वीट, मस्टर्ड है. ऐसे अलग अलग तरीके के सीड्स को आप मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ और ग्राउंड में उसको आप सो करेंगे. दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग. इसका एडवांटेज क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इज टू बी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्यूर.
अगर कोई एक क्रॉप फेल भी होता है तो दूसरा क्रॉप उसके अगेंस्ट में आपको उतना बेनिफिट देता है एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस के अंदर। मिक्स क्रॉपिंग ऑल्सो अवॉइड टू रिस्क फेल्यूर बाय द हार्वेस्टिंग ऑफ द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करता है, इंक्रीज करता है सॉइल की मेंटेनिंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी को। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जो है अगर आप उसके बारे में डिस्कशन करें तो इंटरक्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस to growing of 2 or more crops simultaneously on a same field with the definite row pattern। एक डिफाइनेट रो पैटर्न के अंदर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही लैंड पे आप ग्रो कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द लैंड प्रोडक्टिविटी, लैंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इस मेथड के अंदर आफ्टर 1 रो ऑफ मेजर क्रॉप्स 1, 2 और इवन 3 क्रॉप्स इंटरक्रॉपिंग कैन बी प्लांटेड। 2 और 3 अलग अलग आप कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, दैट शुड बी यूज टू मेक अ बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, लाइट, वाटर, इसका बेटर यूज कर सकते हैं, लैंड का बेटर यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम सेपरेटली कर सकते हैं अलग अलग क्रॉप्स को सेपरेटली, ये उसका फॉर्मेशन होता है। तीसरा आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में अगर आप देखें तो क्रॉप रोटेशन के अंदर आप देखिए तो क्रॉप रोटेशन इज द process to growing different crops on a one after another in a piece of land in a specific land in a time। 1 साल 2 साल 3 साल के गैप में आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अलग अलग क्रॉप्स को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स के अंदर जो उसकी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, उसकी फर्टिलिटी है, वो सब मेंटेन हो सकता है। सो ग्रोइंग ऑफ 1 or 2 टाइप ऑफ क्रॉप साइमल्टेनियसली सेम लैंड ऑफ पीस ईयर्स ऑफ ईयर्स दैट रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। अगर एक ही तरह के क्रॉप्स को आप साइमल्टेनियसली अगर आप ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ फील्ड पे तो वो उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करता है। इट हैपन्स बिकॉज द सिमिलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट शुड बी अब्जॉर्व द न्यूट्रिशन नीडेड बाय देम ओवर एन ईयर्स। तो उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू जो सॉइल की होगी वो खत्म हो जाती है, इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल पे क्रॉप को रोटेट करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन करेंगे वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। देखिए प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ प्रोटेक्शन। Productivity of the field crops are affected by the several factors like such as pest, weeds and disease, and this can have to be lead to a several economic loss. So to overcome this type of problems, 3 aspects that to be taken care. One is called as a weed control, one is called insect pest control, third is called disease control. These are the 3 effects we have to. So combining of these 3 aspects in order to protect the crops, it is implementation of the crop protection management. So in which one of the effect that is creating like weeds, weed is one of the effecting there. So weeds is an unwanted plant that grow along with the useful crops in field, that is known as the weeds. उसको weeds कहेंगे। Weeds that consumes like sunlight, space, nutrition from the soil, so the crop faces the shortage of these resources. So compared to the cultivated crops, seeds of the weeds germinate very easily and grow very faster. So this removal of weeds from the specific time of interval that should be very necessary. It is also important to prepare a proper seed based extremely important from the good crop of harvesting. So it should be easily need to be removed or maybe can be controlled. So crop protection is also be a very much important from the formations like if we discussing the formations के इसमें crop के अंदर अलग अलग तरीके के effects होते हैं। इसमें एक root scraping insects आते हैं, stem और leaf eating insects आते हैं, sap sucking insects आते हैं, तो डिजीज जो है एयर के थ्रू आ सकते हैं, सॉइल के थ्रू आ सकते हैं। तो प्लांट्स को भी ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर जैसे उसके होल्स कर देना फ्रूट में या उसके स्टीम्स में, तो वो इफेक्ट जो होता है वो क्रॉप के प्रोटेक्शंस में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। सो वेरियस पैथोजेनिस विच एग्जिस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, सो इसके लिए हमें अलग अलग तरीके के जो एंटीसिड्स है या डाइमेथोड है या मेथोक्साइड्स है, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस इसमें मिक्स करने होते हैं जो फंगिसाइड्स के स्प्रे करने होते हैं, जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे बैक्टीरियाज का इफेक्ट ना हो, या फिर गोडाउन्स के अंदर इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ मॉइस्चर्स ना हो, टेम्परेचर अच्छा हो, या बायोटिक फैक्टर्स वहाँ पे डिफाइन ना करता हो। तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट कैन बी इजीली प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। नाउ
तो इसमें वही चीज़ दिया है कि स्टोरेज एंड लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर दैट प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक इंसेक्ट्स लाइक रॉडेंट्स, फंगस, माइट्स, बैक्टीरिया। बायोटिक के अंदर मॉइस्चर, टेम्परेचर, तो ऐसी जगह पे हमें स्टोर करना चाहिए जहाँ पे इस इफेक्ट से हम उसको बचा सकते हैं। चलिए, these are the topics that we discussing about the agriculture. Now next we discussing about the mainly focus onto the animals perspective, how we can be implement the animals formation. इसमें animal husbandry हमें पढ़ना है कि what do you mean by the animal husbandry. Animal husbandry क्या है? देखिए, so the branch of agriculture that deals with the feeding, carrying and breeding of the domestic animals is called animal husbandry. So like cattle, goat, sheep, poultry and the fish farming are mainly included into the animal based farming or say maybe animal husbandry. तो इसमें हम पहला डिस्कशन करते हैं कैटल फार्मिंग के बारे में कि व्हाट इज अ कैटल फार्मिंग. द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ कैटल दैट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क एंड द ड्राफ्ट वर्क इज नॉन एज अ कैटल फार्मिंग. उसको आप कैटल फार्मिंग कहते हैं. कैटल फार्मिंग इज डन फॉर द टू पर्पज. दो पर्पज के लिए कैटल फार्मिंग का यूज होता है. एक तो मिल्क पर्पज और दूसरा होता है फॉर द ड्राफ्ट वर्क. ड्राफ्ट वर्क के लिए उसका यूज कर सकते हैं. सो मेकिंग ऑफ कैटल वर्क एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन इन वर्क्स लाइक अ टीलिंग, प्लगिंग, इरिगेशन एंड कार्ड पुलिंग, ये सब के लिए हम उसका यूज करते हैं. Also, these two important cattle used into the Indias like a Bos indicus that is called as the cows and Bubulus bubblis that is called buffalo. That is the specific names. So cattle breed cow and bullock if we consider. So cows provided milk as a food. There are about 30 different type of the breeds of cows which is available in India. Like according to that, if we consider in formations, take like draft breeds, डेयरी ब्रीड्स एंड ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स. इसे तीन तरीके से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. ड्राफ्ट ब्रीड्स, डेयरी ब्रीड्स एंड द ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स. ठीक है. तो जो ड्राफ्ट ब्रीड्स होते हैं, द कैटल्स दैट यूज फॉर द मूविंग फॉर्मेशंस, पुलिंग, कैरिंग, मूविंग अ लोड बाय पुलिंग अ कार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट ब्रीड्स. तो जो कैटल्स मोस्टली यूज होते हैं मूविंग अ लोड बाय अ पुलिंग आर कॉल्ड ड्राफ्ट ब्रीड्स. दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन्स. ये इसके जो स्टोरेज एंड साउट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. डेयरी ब्रीड्स जो होते हैं, डेयरी ब्रीड्स के अंदर मोस्टली मिल्क ऑब्टेनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ये जनरली काफ़ी वीक होते हैं और कैन नॉट बी यूज एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. डुअल पर्पस जो ब्रीड्स होते हैं वो दोनों के लिए यूज होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट भी करता है और ड्राफ्ट वर्क के लिए भी उसका यूज किया जाता है. तो अगर हम बफेलो का ब्रीड्स देखें, हमारे कंट्री के अंदर ऐसे टोटल 10 ब्रीड्स बफेलो का अवेलेबल है कंट्री के अंदर. इसमें 3 मेनली है, जो मुर्रा, मेहसी और सुरती. मुर्रा, मेहसानी और सुरती, ऐसे 3 अलग अलग फॉर्मेशंस में हम ब्रीड्स का यूज कर सकते हैं उसके अंदर. तो जो मुर्रा ब्रीड बफेलो का है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ मिल्क को प्रोड्यूस करता है, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफली देखने को मिलता है. जिसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एनिमल विच कैन गिव द मिल्क, तो वो गिव्स 1800 to 2000 लीटर्स ऑफ मिल्क, इतना मिल्क को प्रोवाइड करता है. उसके अलावा महसानी है. महसानी जो महसाना और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखने को मिलता है, जो 1200 से 15 लीटर मिल्क जो है लैक्टेशन पीरियड के अंदर प्रोवाइड करता है. और सुरती होती है, ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के पास, खेड़ा और वडोदरा के आसपास होती है, जो 1600 से 1800 लीटर्स ऑफ मिल्क जो प्रोड्यूस करता है. दिस आर जनरली पार्ट्स ऑफ द ब्रीड्स. सो अभी ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उसका यूज़ कर रहे हो, ड्राफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, ड्यूअल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके फूड रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होते हैं. तो द फूड रिक्वायरमेंट जो है 2 तरीके के होते हैं. एक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिसमें एक मिल्क प्रोडक्शन का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. एक मेंटेनेंस और एक मिल्क प्रोडक्शन, 2 तरीके के फूड है. केवल मेंटेन करना है तो अलग तरीके का फूड, और मिल्क प्रोसेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीके का फूड आप देना पड़ेगा. तो जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए जो एनिमल्स दैट रिक्वायर्ड द परफॉर्म द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, सो दे हैव टू बी लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, अपने हेल्दी लाइफ को वो सस्टेन कर सकते हैं. और मिल्क प्रोडक्शन जो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर जैसे रफेज या कंसनट्रेट्स उसको दिया जाता है. कंसनट्रेट्स जो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होते हैं. रफेज जो होते हैं जिसमें प्लांट्स के फॉडर्स या वो सब होते हैं जो उनको दिया जाता है, वो यूज़ करने से उनके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिशन होता है वो फुलफिल होता है, और जिसकी वजह से वो हाई अमाउंट ऑफ जो मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो कैटल्स जो है वो भी अलग अलग तरीके के डिजीज से सफ़र करते हैं.
लाइक एक्टोपैरासिट्स एज वेल एज एंडोपैरासिटिक्स, दोनों तरीके के डिजीज जो है उस पर देखने को मिलते हैं। तो एक्टोपैरासिटिक्स जो है लाइक टिक्स एंड माइट्स, जो मेनली जो उनके बॉडी के स्किन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो अलग अलग स्किन डिजीज क्रिएट करता है। जबकि एंडोपैरासिटिक जो होता है लाइक वॉर्म्स डैमेज करता है उसके स्टमक और इंटेस्टाइन को, जो वेयर फ्लॉक डैमेज करता है उनके लीवर के अंदर कैटल्स के। तो कैटल्स में ऑल्सो कैच द कम्युनिकेबल डिसीज, जो बैक्टीरिया वायरस फंगस के थ्रू उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है और जो अलग अलग तरीके के इफेक्ट करता है। तो इसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? सो अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है तो एक्टोपैरासिटिक्स के लिए उसको रेगुलरली उसके स्किन्स को आप रब करिए, साफ करते रहिए, उसके माउथ को सॉल्ट वाटर के साथ, कभी कभी उसको इफेक्टिव वैक्सीन है या फिर जो एंटीबॉडीज़ है उसके बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए, ताकि वो उसका बॉडी जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए डेवलप हो सके और इस तरह के डिजीज से वो बच सके। तो ये पूरा फॉर्मेशन जो होता है वो कैटल फार्मिंग के बारे में होता है। नेक्स्ट जो होता है वो पोल्ट्री फार्मिंग है। फार्मिंग जो है लाइक बर्ड्स एज फाउल, डक्स एंड क्विल्स फॉर द एग्स एंड द मीट रिक्वायरमेंट ऑन द कमर्शियल पर्पज, जिसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो इंडिया के अंदर आप देखें तो जो इंडिजिनियस, जिसको लोकल और देसी ब्रीड्स कहते हैं, वो मोस्टली यहाँ पे यूज हुआ जाता है, जिसमें एसल इज ऑल्सो नॉन एज ए इंडियन गेम्स यानी कि ब्रॉड्स दे हैव टू कॉप फॉर द फाइटिंग्स, जो मुर्गे लड़ते हैं वो जनरली उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एजल्स जो है वो फाउंड होते हैं 3 अलग अलग वेराइटीज के अंदर, एक पीला, याकूब और काजल। पीला जो होता है वो गोल्डन रेड कलर का होता है, याकूब जो होता है वो ब्लैक और रेड कलर का होता है, काजल जो होता है पूरा ब्लैक कलर का होता है। इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी आप डिजीज के प्रिवेंशन देखने होते हैं। पोल्ट्री के जो बर्ड्स होते हैं में सफर फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ डिजीज लाइक कॉज्ड एज अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासिटिक्स, ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिजीज अकरिंग द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑन देयर फूड। अगर फूड के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो भी वो उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट्स दैट शुड बी टास्क फॉर कैप्चरिंग द फिशेस ऑन द कमर्शियल बेसिस इज नॉन एज अ पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग होता है। तो बहुत जैसे ऐसे डाइज हो जाते हैं तो प्रॉपरली सैनिटाइजेशन करवाना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, वैक्सीनेशन देना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये होता है पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। तो नंबर ऑफ चिक्स और वो सब इम्प्लीमेंटेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्स और बॉयलर प्रोडक्शंस के लिए भी, जैसे बॉयलर और चिकन फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट होता है जो गुड ग्रोथ रेट करता है एफिशिएंसी के अंदर, उसमें आप इस तरह के न्यूट्रिशंस का यूज़ करके आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर फिश प्रोडक्शन आता है। फिश इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक इम्प्लीमेंट। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन ट्रू फिश एज वेल एज द सेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलिस। तो उसमें अलग अलग तरीके के फिश फॉर्मेशंस होते हैं विच इज कॉल्ड एज अ कैप्चर फिशिंग, जिसको हम कह सकते हैं, दूसरे फॉर्मेशन में कल्चर फिशरी भी कह सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टू आप देखें तो सी वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। फिन फिश और सेल फिशिंग, ऐसे 2 तरीके के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपोग्राफी और लैंड क्या है, फिशिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दैट। तो मैरिन फिशरीज क्या है पहले वो देखें। तो इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज स्केप ऑफ मैरिन फिश, अराउंड ऑफ 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट एंड लार्जर कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे है। तो सीज दैट मोस्ट ऑफली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरियाज। तो फिशेज लाइक बॉम्बे डक्स है, प्रॉम्पेट्स, विच ऑल आर अवेलेबल इनटू द लार्ज क्वांटिटी इनटू द सी कोस्ट लाइक सौराष्ट्र एंड द कच्छ रीजन्स इनटू द गुजरात। उसके अलावा मैरिन फिशरीज के अलावा भी अगर आप देखें तो जैसे फॉर्मेशंस होता है इनलैंड फिशरीज के लिए। तो इनलैंड फिशरीज में देखिए द फिशेज डन इनटू द फ्रेश वाटर्स लाइकली स्लॉटी वाटर्स इज कॉल्ड एज इनलैंड फिशरीज, जहाँ पे सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूड द रिवर्स, कैनल्स एंड रिजर्वर्स, जहाँ पे सोर्स ऑफ ब्लैक फिश वाटर इंक्लूड द and lagoons. So inland fishery is one of the most common and beneficial fish culturing or fish production, also called as a table fishes. तो ये इसके अंदर आप देखिए जैसे इन फिश पॉन्ड कैटला फिश है या टॉप सरफेसिस है, रोहूज फिश है, देयर शुड बी मिडल जोन ऑफ पॉन्ड्स के अंदर माइग्रेटेड हो सकते हैं। तो बिफोर गोइंग ऑन द फिश कल्चरिंग वी हैव टू बी फैक्टर्स ऑन द सर्टेन रीजंस लाइक वाटर सोर्सेज क्या है, टोपोग्राफी क्या है, उसकी सॉइल क्वालिटी क्या है, दिस विच हैव टू बी टेकन केयर बिफोर द गोइंग इनटू द फॉर्मेशंस ऑफ द फिश फार्मिंग, राइट। तो ये पूरा का पूरा फिश फार्मिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ बी कीपिंग। Now the cultivation of bee for the productions of the honey and the commercial basis, that is known as a beekeeping. The practice of beekeeping is also called as a apiculture. उसको आप apiculture भी कह सकते हो। A place where the bees are kept is called apiary. जहाँ पे आप bees को रखते हैं उसको आप apiary कहते हैं। Apiculture is practiced to obtain the honey and the bees wax
एंड इज टू जनरेट द एडिशनल इनकम. आप उसका एग्रीकल्चर में एडिशनल इनकम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. एंड दैट शुड बी यूज एज अ नेस्ट कॉल्ड बी हाइव्स. बी हाइव्स के अंदर वो रहते हैं. अभी हनी का प्रोडक्शन क्यों होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या है. हनी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बीज यूज फॉर द मेडिसिन. मेडिसिन के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्स अ गुड ब्लड प्योरीफायर. इज क्योर अगेंस्ट लाइक अ कफ एंड कोल्ड, यूटरस ऑफ टंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के प्रॉब्लम से मैं बेनिफिट करता है. हनी दैट जनरली कंटेन अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयरन एंड कैल्शियम. इट्स हैंड्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी. उसके लिए भी उसका यूज होता है. सो देर आर 3 स्पीसीज ऑफ द हनी बी दैट इज फाउंड इन अवर कंट्री, जिसमें एपिस सेरेना इंडिका है जिसको इंडियन बी कहते हैं, एपिस डॉर्सेटा है जिसको रॉक बी कहते हैं, एपिस फ्लोरा है जिसको लिटिल बी कह सकते हैं. सो दीज आर द जनरली बीज विच शुड बी यूज एज अ फॉर्मेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर. So these are the generally practice of the animal husbandry and the agriculture which generally implement the large amount of cultivation of crops which generally helps to the farmers to the additional incomes. Clear? So that the end of this chapter, I hope that what we have to discussing on the part of the agricultures, the manures, fertilizers, irrigation, crop production, crop rotation, hybridizations, types of farmers, animal husbandry, cattle farming, fish farming, poultry farming, and bee farming. These are the topics that you easily understand. So what are the questions that is given into the exercise? Just you have to be solve yourself and just revise the question what is given into the textbook. So keep updating your knowledge by using the textbook and different digital mediums of learning. Once again, requested to stay home and stay safe. Don't be moving outside without any unnecessary work. So stay home, stay safe, and read the textbook carefully and write the answers which is given into the exercise in your own words. Students, till with today on the last topic of this forms. Let me meet tomorrow with another topic. Till take care, and we'll meet tomorrow and take care in the formations that we have to moving. So students, that will we meet tomorrow. Take care and bye.